આજે અમારી શાળા દિવાળી હાઈસ્કૂલ પીઠવડીના પ્રટાંગણમાં અત્રે જે સ્ટાન્ડર્ડ રાઇટિંગ કોમ્પિટિશન અંતર્ગત જે કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે તેમાં અમારા આમંત્રણને માન આપીને અત્રે ઉપસ્થિત કોર્ડિનેટર શ્રી સાહેબ શ્રી તથા આચાર્ય સાહેબો તથા શાળાના આચાર્ય શ્રી તથા વાલા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો, હું આપ સૌનું સંસ્થા પરિવાર વતી, ટ્રસ્ટ વતી અને મારા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો વતી આપ સૌનું શાબ્દિક હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સરસ્વતી સ્વયં પ્રકાશ ઉગ્રભુવન આવ્યો છો પ્રત્યે વાણી વિલાસ શ્રી ગણપતિને ચરણે નમી કરજોડી લાગુ પાય સદા સર્વદા સમર્થા વિઘ્ન ન આવે પાસ. કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત કરતા શ્રીજી કેળવણી મંડળ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત દિવાળી હાઈસ્કૂલ પીઠવડીમાં અત્રે ઉપસ્થિત કે જેમનું સ્ટાન્ડર્ડ ખરેખર ખૂબ ઊંચું છે એવા અમનસિંહ, ત્યારબાદ મારા પરમ મિત્ર અને વહીવટી કોઈ પણ પ્રકારની મને મુશ્કેલી હોય અને આમ દિવસમાં એક વખત ન મળીએ તો એ બંને મિત્રો વગર ચાલે નહીં અને એને એમ લાગે કે આજ કંઈક ખૂટે છે અને મને પણ એવું લાગે કંઈક ખૂટે છે એવા મારા બંને મિત્રો હીરપરા સાહેબ તેમજ મલયભાઈ. ત્યારબાદ આમાંથી દર વર્ષે 1-2 વિદ્યાર્થીઓ સાયન્સ કરવા માટે જતા હોય ને આપણા વિદ્યાર્થીઓ મોટા ભાગે KK હાઈસ્કૂલ સાવરકુંડલાની અંદર સાયન્સના અભ્યાસ માટે જતા હોય તો બાયોલોજીના જે ઉત્તમ શિક્ષક છે એવા અને મારા સ્નેહી મિત્ર એવા પરમાર સાહેબ, એમનું હું પણ શાળા પરિવાર વતી હાર્દિક સ્વાગત અભિવાદન કરું છું. સૌ प्रथम तो अमन सिंह जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ. इसलिए गुजराती में चलेगा ना तो गुजराती में ही बात करता हूँ. જેમ કે ગુજરાતીની ફાવટ હોય, હિન્દીમાં ક્યારેક માયાભાઈ જેવું થઈ જાય. એટલે સૌ પ્રથમ તો અમનજીને આપણે ધન્યવાદ આપીએ. સરકારની યોજના હોય એમાં વ્યક્તિઓ અલગ અલગ હોય, સરકારે યોજના નક્કી કરી હોય એ તો એની રીતે થતી જ હોય, પણ અમનસિંહ જે અંગત રસ લઈ અને સ્ટાન્ડર્ડ ખરેખર શું કહેવાય અને સ્ટાન્ડર્ડ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં કેવા કેવા પરિણામો પ્રાપ્ત કરી શકાય અને વિદ્યાર્થી છે એ સ્ટાન્ડર્ડ ક્લબ દ્વારા એક સ્ટાન્ડર્ડ પોતાના જીવનમાં ઊભું કરી શકે એવી પૂરેપૂરી ખેવના પૂરેપૂરી કાળજી રાખી અને અમનસિંહ આવો અંગત રસ લે છે ત્યારે હું ખરેખર આચાર્ય તરીકે ખૂબ ખુશ છું. કેમ કે કાર્યક્રમો ઘણા બધા થતા હોય પણ તમે અંગત રસ લઈને જ્યાં કાર્યક્રમ કરો અને કાર્યક્રમનો હેતુ જે હોય એ બરોબર આવે છે એનો મને આજ આનંદ છે અને ગૌરવ છે. એ માટે આપણે અમનસિંહને તાળીઓથી વધાવીએ. સ્ટાન્ડર્ડ વિશે ઘણા સમયથી આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ, વાતો કરીએ છીએ. એની આપણે મયંકભાઈ છે, ભેસાણિયા સાહેબ છે, હું છું, આ તમને ઘણી બધી ચર્ચાઓ અને ઘણી બધી સ્ટાન્ડર્ડ લખાવ્યા 2-3 વખત અને તમે એના વિશે જાણો જ છો, પણ વધારે વિસ્તૃત રીતે જાણકારી છે એ અમનસિંહજી આપવાના છે. તો સ્ટાન્ડર્ડ છે, હું એવું માનું છું કેમ કે મેં 3-4 સંશોધનો કરેલા છે એટલે સ્ટાન્ડર્ડ છે એ સંશોધનનો એક જ ભાગ છે. કિશોરીલાલ મશરૂવાળાએ કીધું છે કે નહીં જાણેલાને જાણવું અને જાણેલાને વિકસાવવું એટલે સંશોધન. તો આની અંદર કોઈ એક બાબતને તમે એટલી ઊંડાણપૂર્વક જાણો, ઈ જ બાબત તમને તમારા જીવનમાં, તમને તમારા અભ્યાસમાં, તમને તમારા પરિવારમાં આ જ બાબત છે એ જો એક વખત સ્ટાન્ડર્ડ તમે સારી રીતે ડેવલપ કરતા શીખી જાઓ પછી જીવનના તમારા દરેક તબક્કે છે એ આ સ્ટાન્ડર્ડ ઉપયોગી થઈ શકે એમાં શંકાને કોઈ સ્થાન નથી. અંતમાં ફરી વખત બધા જ મહેમાનો અને મારા મિત્રો અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા એ બધાનો હું દિલથી હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. અંતમાં કે મોંઘું મળ્યું છે જીવન તો ઘટાદાર જીવો, પલ પલ નહીં પરંતુ લગાતાર જીવો. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત. સરસ્વતી સ્વયં પ્રકાશ ઉગ્રભુવન આવ્યો છો પ્રત્યે વાણી વિલાસ શ્રી ગણપતિને ચરણે નમી કરજોડી લાગુ પાય સદા સર્વદા સમર્થા
વિઘ્ન ના આવે પાસ. કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત કરતા શ્રીજી કેળવણી મંડળ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત દિવાળીબા હાઈસ્કૂલ પીઠવડીમાં અત્રે ઉપસ્થિત કે જેમનું સ્ટાન્ડર્ડ ખરેખર ખૂબ ઊંચું છે એવા અમનસિંહ, ત્યારબાદ મારા પરમ મિત્ર અને વહીવટી કોઈ પણ પ્રકારની મને મુશ્કેલી હોય અને આમ દિવસમાં એક વખત ન મળીએ તો એ બંને મિત્રો વગર ચાલે નહીં અને એને એમ લાગે કે આ કંઈક ખૂટે છે, મને પણ એવું લાગે કંઈક ખૂટે છે. એવા મારા બંને મિત્રો હીરપરા સાહેબ તેમજ મલયભાઈ. ત્યારબાદ આમાંથી દર વર્ષે 1-2 વિદ્યાર્થીઓ સાયન્સ કરવા માટે જતા હોય ને આપણા વિદ્યાર્થીઓ મોટા ભાગે KK હાઈસ્કૂલ સાવરકુંડલાની અંદર સાયન્સના અભ્યાસ માટે જતા હોય. તો બાયોલોજીના જે ઉત્તમ શિક્ષક છે એવા અને મારા સ્નેહી મિત્ર એવા પરમાર સાહેબ, એમનું હું પણ શાળા પરિવાર વતી હાર્દિક સ્વાગત, અભિવાદન કરું. સૌપ્રથમ તો अमन सिंह जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ. इसलिए गुजराती में चलेगा ना तो गुजराती में ही बात करता हूँ, કેમ કે ગુજરાતી ની ભાવ એટલું હોય, હિન્દીમાં ક્યારેક માયાભાઈ જેવું થઈ જાય. એટલે સૌપ્રથમ તો અમનજીને આપણે ધન્યવાદ આપીએ. સરકારની યોજના હોય એમાં વ્યક્તિઓ અલગ અલગ હોય, સરકારે યોજના નક્કી કરી હોય એ તો એની રીતે થતી જ હોય, પણ અમનસિંહ જે અંગત રસ લઈ અને સ્ટાન્ડર્ડ ખરેખર શું કહેવાય અને સ્ટાન્ડર્ડ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં કેવા કેવા પરિણામો પ્રાપ્ત કરી શકાય અને વિદ્યાર્થી છે એ સ્ટાન્ડર્ડ ક્લબ દ્વારા એક સ્ટાન્ડર્ડ પોતાના જીવનમાં ઊભું કરી શકે એવી પૂરેપૂરી ખેવના, પૂરેપૂરી કાળજી રાખી અને અમનસિંહ આવો અંગત રસ લે છે ત્યારે હું ખરેખર આચાર્ય તરીકે ખૂબ ખુશ છું. કેમ કે કાર્યક્રમો ઘણા બધા થતા હોય પણ તમે અંગત રસ લઈને કાર્યક્રમ કરો અને કાર્યક્રમનો હેતુ જે હોય એ બરોબર પર આવે છે એનો મને આજ આનંદ છે અને ગૌરવ છે. એ માટે આપણે અમનસિંહને તાળીઓથી વધાવીએ. સ્ટાન્ડર્ડ વિશે ઘણા સમયથી આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ, વાતો કરીએ છીએ. એની આપણે મયંકભાઈ છે, ભેસાણિયા સાહેબ છે, હું છું, આ તમને ઘણી બધી ચર્ચાઓ અને ઘણી બધી સ્ટાન્ડર્ડ લખાવ્યા 2-3 વખત અને તમે એના વિશે જાણો જ છો, પણ વધારે વિસ્તૃત રીતે જાણકારી છે એ અમનસિંહજી આપવાના છે. તો સ્ટાન્ડર્ડ છે, હું એવું માનું છું કેમ કે મેં 3-4 સંશોધનો કરેલા છે, એટલે સ્ટાન્ડર્ડ છે એ સંશોધનનો એક જ ભાગ છે. કિશોરીલાલ મશરૂવાળાએ કીધું છે કે નહીં જાણેલાને જાણવું અને જાણેલાને વિકસાવવું એટલે સંશોધન. આની અંદર કોઈ એક બાબતને તમે એટલી ઊંડાણપૂર્વક જાણો, ઈ જ બાબત તમને તમારા જીવનમાં, તમને તમારા અભ્યાસમાં, તમને તમારા પરિવારમાં આ જ બાબત છે એ જો એક વખત સ્ટાન્ડર્ડ તમે સારી રીતે ડેવલપ કરતા શીખી જાઓ પછી જીવનના તમારા દરેક તબક્કે છે એ આ સ્ટાન્ડર્ડ ઉપયોગી થઈ શકે એમાં શંકાને કોઈ સ્થાન નથી. અંતમાં ફરી વખત બધા જ મહેમાનો અને મારા મિત્રો અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા એ બધાનો હું દિલથી હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. અંતમાં કે મોંઘું મળ્યું છે જીવન તો ઘટાદાર જીવો, પલ પલ નહીં પરંતુ લગાતાર જીવો. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત. डायस पे उपस्थित दिवालीबा स्कूल के प्रिंसिपल श्री कमालिया साहब, KK हाई स्कूल सावरकुंडला से हमारे स्टैंडर्ड क्लब के मेंटर श्री योगेश परमार साहब, RJ देसाई हाई स्कूल सावरकुंडला से उपस्थित हीरपरा साहब, श्री गडकता
हाई स्कूल सावरकुंडला से उपस्थित श्री मलय भट्ट साहब और दिवाली बा हाई स्कूल के मेंटर श्री जगदीश साहब, आप सभी ने BIS को अपने स्कूल से जोड़ने के लिए जो इंटरेस्ट जो दिखाया है उसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो आप सभी का आभार व्यक्त करता है। मैं अमन सिंह आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आप सभी ने भारतीय मानक ब्यूरो को अपने विद्यालय में अपने छात्रों से मिलने का मौका दिया, उनको स्टैंडर्ड समझने का मौका दिया। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अमन सिंह है और मैं राजकोट शाखा कार्यालय में स्टैंडर्ड प्रमोशन ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। स्टैंडर्ड आप सभी जब से ये कार्यक्रम अनाउंस किया गया होगा तब से आप सिर्फ स्टैंडर्ड क्लब स्टैंडर्ड के बारे में आप सोच रहे होंगे कि स्टैंडर्ड है क्या। स्टैंडर्ड कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, नॉट अ बिग वर्ड। लोग कहते हैं कि लाइफ जीने का भी एक स्टैंडर्ड है। लाइफ जीना है तो एक स्टैंडर्ड से जीना चाहिए। खाना खाना चाहिए तो हमें स्टैंडर्ड का खाना खाना चाहिए। पानी हमें पीना है तो अच्छा पानी, स्टैंडर्ड वाला पानी, अच्छे क्वालिटी का पानी पीना चाहिए। तो स्टैंडर्ड एक मानक होता है जो कि हमारे BIS के द्वारा तय किया जाता है। हर एक प्रोडक्ट का एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हर क्लास का एक स्टैंडर्ड होता है। अगर हम क्लास नर्सरी की बात करें या क्लास 1 की बात करें, क्लास मतलब कक्षा, तो हम क्लास 1 में क्या सीखते हैं? ABCD नो सीखते हैं कि नहीं? ABCD सीखते हैं, 1 2 सीखते हैं। तो हमारे क्लास 1 स्टैंडर्ड के लिए क्या हो गया? ABCD उसका सिलेबस, ठीक है। क्लास 2 में जाते हैं तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सीखते हैं। तो वैसे ही हर एक स्टैंडर्ड, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग पैरामीटर डिसाइड किए गए हैं। अगर हम किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो मैं ऐसा प्रोडक्ट लूंगा जो कि सभी ने देखा हो, सभी के घर में यूज होता हो। एक प्रेशर कुकर के बारे में बात करेंगे। प्रेशर कुकर सबके घर में है? सबने देखा है? अगर हिंदी में कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, फिर मैं जगदीश सर को बोलूंगा कि वो कुछ गुजराती में भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। हिंदी में कंफर्टेबल हो ना सभी? तो प्रेशर कुकर सबके घर में होगा। तो प्रेशर कुकर में क्या क्या आप
आपने देखा है, कैसे उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, कैसे काम करता है। प्रेशर कुकर का नाम प्रेशर कुकर ही क्यों रखा गया? उसको कुकर भी बोल सकते थे। प्रेशर कुकर का नाम प्रेशर कुकर इसलिए रखा गया क्योंकि उसके अंदर प्रेशर डेवलप होता है, प्रेशर बनता है, इसलिए उसका नाम प्रेशर कुकर रखा गया। तो प्रेशर कुकर का फंक्शन क्या है? प्रेशर डेवलप करना। और वो कैसे डेवलप कर सकते हैं? कैसे होता है प्रेशर डेवलप? उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट चाहिए, मटेरियल चाहिए? अगर एक प्रेशर कुकर बनाना हो, जवाब देजो, साहब जवाब मांगे ना तो देजो। अगर मैं पूछूंगा तो आपको जो भी आता हो आप बताना। मैं आप सभी को यहाँ पे बताने ही आया हूँ। अगर आप गलत भी बताओगे फिर भी मैं उसको सही करके जाऊंगा, ठीक है? और कुछ नया चीज सीख के जाए, आपको सिखा के जाएंगे। प्रेशर कुकर बनाने के लिए सबसे पहले क्या हमें जरूरत है? मटेरियल की। ऊंची आंगली કરીને करो ना तो ख्याल आवे। मटेरियल की सबसे पहले हमें मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। मटेरियल कैसा होना चाहिए? प्रेशर कुकर आपके हिसाब से, आपके जहन में क्या होना चाहिए? किस तरीके का प्रेशर कुकर होना चाहिए? उसका मटेरियल किस चीज का होना चाहिए? आपकी तरफ से बताइए। પ્રેશર કુકર બનાવવા માટે જે વસ્તુ વપરાય છે એ કેવી હોવી જોઈએ? એમાં કઈ કઈ વસ્તુનો ઉપયોગ હા. છે ભાઈ? જલ્દી શર્માઓમાં આયા ભાઈ। માટી कोई भी सजा नहीं दे रहा है। હાલો બેનો, આ સ્ટાન્ડર્ડ ક્લબ વાળા બેનો। માટી ચાલે, પ્લાસ્ટિક ચાલે? अच्छा, हमारे કાગળ स्टैंडर्ड ચાલે? क्लब के मेंबर्स कितने हैं? अपने हाथ उठाएंगे। એને કમ્પલસરી કયો એટલે બધો જવાબ દે। आप सभी को तो जवाब देना पड़ेगा। પ્રાચી જવાબ દે બેન। प्रेशर હા, ઊભી થઈને બેન, ઊભી ઊભી થઈ। થઈને। કમલેશભાઈ વિડિયો। एल्यूमिनियम। और किसी के जहन में है कि किसी और भी मेटल का बन सकता है? हाँ, स्टील। और स्टेनलेस स्टील। हाँ, वो एक ही बात है, स्टेनलेस स्टील। और ग्लास का भी तो बना सकते, शीशे का। કાચ, કાચ। कॉपर का भी तो बना सकते, आयरन का बना सकते। प्रेशर कुकर आयरन का भी तो हो सकता है, वो भी मेटल है। લોખંડ। लोहे का बना सकते, बट क्यों नहीं बनाते? किसने बोला बना सकते? काट लागे એટલે जंग लगता। वेरी गुड। जंग भी लगता है। दूसरा, मेटल की जो प्रॉपर्टी है, जो उसका प्रॉपर्टी है, वो दूसरे वस्तुओं में ट्रांसफर होने की है। अगर हम लोहे की कढ़ाई में अगर कोई सब्जी बनाते हैं, साग बनाते हैं, थोड़ी देर बाद अगर आप उसको देखोगे ना तो वो काला पड़ जाएगा। पता है? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी उस सब्जी के अंदर आ जाती है। तो हम लोहे का नहीं बना सकते, ग्लास का बना सकते। કાચનું બનાવી શકાય પ્રેશર કુકર? શા માટે? क्यों? ઊંચી આંગળી કરીને જવાબ આપો ફટાફટ। લે થાવ ને બેન। પૂરા વાક્યમાં જવાબ આપો। કારણ કે તે કાચ છે એટલે તે ફાટી પણ શકે। और कांच मेल्ट भी हो सकता है, मतलब गल भी सकता है। अगर ज्यादा उसको हीट मिले तो वो गल जाएगा, ठीक है?
तो हम ग्लास का भी नहीं बना सकते। दूसरा एक और रीजन है कि अगर हम ग्लास का कुकर बनाया और हमने चलो बहुत अच्छा ग्लास यूज कर लिया, तो उसके अंदर जो प्रेशर बनेगा वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, रोक नहीं पाएगा। प्रेशर डेवलप होगा तो वो फट जाएगा, इसलिए हम ग्लास का भी नहीं बना सकते। कॉपर का बना सकते? क्यों? तांबा का बना सकते? कॉपर नहीं बना सकते, क्योंकि तांबा की भी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की होती है। उसका भी कुछ पार्टिकल्स उस खाने में, उस चीजों में मिल जाता है। जैसे हम पहले हमारे दादा परदादा जो है कहते थे कि जो है आप रात को कॉपर की बोतल में पानी रख के सोया करो और मॉर्निंग में पिया करो, इससे आपके बॉडी में कॉपर की कमी नहीं होगी। तो क्या होता था, वो रात भर में कॉपर की कुछ जो है प्रॉपर्टी उसके पानी के अंदर आ जाती थी। सुना है या नहीं, देखा है कि नहीं कहीं? ये आपके सिलेबस में भी होगा। तो हम कॉपर का भी नहीं बना सकते। फिर और कौन सा मेटल बचा? स्टील। एल्यूमिनियम का बना सकते, स्टील का बना सकते? हाँ? स्टील का भी बना सकते हैं। स्टील का भी बना सकते हैं। स्टील का भी स्टैंडर्ड है प्रेशर कुकर का, बट हम प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम का ही बनाते हैं, क्योंकि स्टील का कॉस्टिंग बहुत हाई है, उसकी जो है प्राइस बहुत महंगी पड़ती है। इस वजह से हम एल्यूमिनियम के ही प्रेशर कुकर यूज करते हैं या मार्केट में देखते हैं। चलिए, मटेरियल तो हो गया हमारा एल्यूमिनियम का। ધ્યાન આપજો બધા, સાંભળજો ખાસ। બધા વ્યવસ્થિત। પછી આ કુકરનું તમારે બનાવવાનું થાય એ હું તમને કહીશ। ठीक है, तो हमने मटेरियल तो ले लिया, उसके बाद और क्या चाहिए? और क्या क्या होना चाहिए प्रेशर कुकर में? मटेरियल ले लिया, उसके बाद रबर की रिंग, गास्केट बोलते हैं, वो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए रबर की रिंग? હા, ઊભો થઈને બોલી જવાનું બે। હા, प्रेशर लीक ना हो, प्रेशर प्रॉपर तरीके से डेवलप हो, इस वजह से होनी चाहिए। अब आप दोनों नहीं बताएंगे कुछ भी। उसके बाद रिंग हो गया, उसके बाद क्या होना चाहिए? वो आंगळे ऊंची કરીને જવાબ દો તો હું વાંધો? बोलो, गलत भी होगा तो भी चलेगा। આ વિભાગમાં બોલો ભાઈ, રોજ શાક ખાવ છો, રોજ બધું ખાવ છો કુકરનું બનાવેલું। हैंडल होना चाहिए, ढाकड़ी गुजराती में बोलते हैं। हाँ हाँ, बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो। ઊભા થઈને જવાબ આપો, તમે ઊભા થઈને જવાબ આપો, સરસ। बोलो, अच्छा बोल रहे हो। हाँ, कुकर के अंदर जो આપણે ગેસ નીચે શરૂ કરી તો કુકર અંદર પ્રેશર ભરાય સીટી ઊંચી। क्या बात है, प्रेशर डेवलप होता है। हम ये जो प्रोसेस है, ठीक है, वो प्रेशर डेवलप होता है। उसमें प्रेशर डेवलप होने के बाद क्या होता है? विसल उठता है, यानी सीटी बजती है। सीटी कैसे बजती है? हमें भी पता है, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? सीटी क्यों बजती है? नकल नहीं करनी है। प्रेशर डेवलप होने के बाद
बोल देना। यस, उसके अंदर जो प्रेशर डेवलप हुआ है उसको बाहर भी रिलीज करना है। तो वो रिलीज किस फंक्शन पे होता है वो हम स्टैंडर्ड में जानेंगे। स्टैंडर्ड में लिखा होता है कि कुकर का जो वर्किंग है वो 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे काम करना चाहिए। आज सब लोग अपने घर जाएंगे और सबसे पहला प्रेशर कुकर देखेंगे। उस पे पहला चीज तो ISI मार्क देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे कि उस पे 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है कि नहीं। हर प्रेशर कुकर पे उसके फंक्शन लिखे होते हैं कि वो फंक्शन किस क्राइटेरिया में करेगा। तो जब उस प्रेशर कुकर के अंदर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर डेवलप हो जाता है तो विसल उठती है। तो हमें विसल का भी वेट डिफाइन करना है। ऐसा नहीं कि हमने प्रेशर कुकर इतना छोटा इतना है और हमने सीटी बना दिया इतना बड़ा, वो काम करेगा क्या? हमारा प्रेशर कुकर 1 kg का है और हमारा जो विसल है सीटी है वो 2 kg का हो गया। ऐसा होता है? प्रेशर कुकर से सीटी का जो साइज है वो छोटा होता है और हल्का भी होता है। यानी हमें प्रेशर कुकर के विसल को भी डिसाइड करना है कि उसका वेट कितना होना चाहिए कि 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जब डेवलप हो तो वो उठ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है? बताओ, क्या समझा अभी तक? 11-12 वाला भाइयों बहनों जवाब आपो फटाफट। गुजराती में जवाब आपो। गुजराती में जवाब आपो। મને ગુજરાતી આવે છે। કુકરમાં 1 kg નો જ્યારે પ્રેશર આમ ફેરવી નખાય જવાબ દઈને કુકરની સીટી ઊંચી થાય કે બીજ આવેલો વસલ વાગે। हाँ, तो जब प्रेशर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा होगा तो विसल उठेगी और उसका वेट भी उसी हिसाब से हमें डिजाइन करना है, डिफाइन करना है कि वो 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर डेवलप होते ही वो उठ जाए। और जैसे ही प्रेशर जो है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से नीचे आता है वो सीटी अपने आप बंद हो जाती है। होती है कि नहीं? या हाथ से बंद करना पड़ता है? कभी कभी करना पड़ता है क्योंकि वो जो है प्रेशर कुकर बदमाश हो गया होता है, तब तक पुराना हो गया होता है। तो क्या होता है जब हम पहली बार स्कूल आते हैं तो बड़ी डरे डरे से रहते हैं, है ना, कि कोई टीचर मार ना दे। फिर हम धीरे धीरे जब डेली आने लगते हैं, 6 महीने 1 साल हो जाता है, तो फिर हम बदमाशी शुरू कर देते हैं, है ना, क्योंकि हम पुराने हो गए होते हैं। हम सभी को जान गए होते हैं कि ये टीचर तो नहीं मारेंगे चाहे कुछ भी बदमाशी कर लो। तो वैसे ही प्रेशर कुकर भी जब पुराना हो जाता है तो उसके फंक्शन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। आप उसको सही करा सकते हो, लेकिन जनरली लोग कराते नहीं। चलो हाथ से बंद कर देंगे ऐसे, हाँ? ठीक है। तो हमारा प्रेशर कुकर काम करने का तरीका हमने जान लिया। अब हम सेफ्टी की बात करेंगे। सपोज प्रेशर कुकर हमने डाल रखी और प्रेशर डेवलप भी हो रहा है बट सीटी काम नहीं कर रहा है, वो प्रेशर रिलीज ही नहीं कर रहा है। फिर क्या होगा? ब्लास्ट, हाँ, ब्लास्ट हो जाएगा। होता है, कहीं देखा है, कभी सुना है कि कुकर ब्लास्ट हो गया? हाँ, कहाँ? हाँ तो ઊભી થા। वाह वाह, वेरी गुड। મોટેથી ગુજરાતીમાં ક્યાં તું તાર? હા, સેફટી વોલથી હવા નીકળે। वेरी गुड। जो हमने सेफ्टी वॉल्व लगाया था ना, उसका काम ही यही था
कि जब प्रेशर डेवलप हो और ज़्यादा डेवलप हो जाए तो अगर सीटी नहीं काम करे तो उसके थ्रू प्रेशर रिलीज हो सकता है। और उसके अंदर एक छोटा सा एक ऐसे मेटल यूज किया जाता है कि हाई प्रेशर डेवलप होने के बाद वो अपने आप मेल्ट हो जाता है, गल जाता है। मेल्ट को क्या बोलते हैं जगदीश सर? पिघल जाता है। पटेल साहब आओ અહીંયા, पटेल साहब અહીંયા आओ। पिघल जाता है, समझ में आ रहा है? तो एक सेफ्टी हमने ये रखा कि हमें अगर प्रेशर कुकर का अगर सीटी काम नहीं करता तो हमें सेफ्टी वाल्व के थ्रू रिलीज करना है ताकि किसी को नुकसान ना हो। अगर प्रेशर कुकर का सीटी और सेफ्टी वाल्व भी नहीं काम करा फिर क्या होगा? कभी कभी क्या होता है कि प्रेशर कुकर का सीटी और सेफ्टी वाल्व भी नहीं काम करता, फिर क्या होता है? फिर क्या होगा? फट जाएगा? नहीं फटेगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड वाला है, उस पर ISI लगा हुआ है, इसलिए नहीं फटेगा। तो स्टैंडर्ड में हमने सेफ्टी को इतने ऊपर रखा है कि प्रेशर कुकर की जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, जब आप और बड़े होंगे, हायर एजुकेशन में जाएंगे, तो एक इंजीनियरिंग अगर आप करेंगे फ्यूचर में तो उसमें एक सेक्शन होता है जिसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ते हैं और किसी चीज के मैक्सिमम एक्सटेंड होने तक की सेफ्टी हम रखते हैं उस सब्जेक्ट में। तो प्रेशर कुकर के केस में प्रेशर कुकर की फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 टाइम्स है, 6 गुना है। अगर प्रेशर कुकर 1 kg पे काम कर रहा है तो उसके 6 गुना प्रेशर डेवलप हो गया उसके अंदर, तो भी नहीं फटना चाहिए। तो हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी देखना है। तो अगर उसके बाद आप सोचोगे कि चलो 6 गुना भी हो गया, अब क्या होगा? अब तो फट जाना चाहिए। नहीं, अभी भी नहीं फटेगा, क्योंकि प्रेशर जो है उसके अंदर जो डेवलप हो रहा है वो उसको इतना एक्सटेंड कर देगा मेटल को कि वो आपका कुकर गोल हो जाएगा, लेकिन फटेगा नहीं। हम कभी फ्यूचर में एक प्रेशर कुकर कंपनी में लेके जाएंगे आपको, और वहां पे हम देखेंगे टेस्टिंग, और उसमें सारे पैरामीटर्स हम चेक करते हैं। हम उसके विसल को भी बंद कर देते हैं, उसके सेफ्टी वॉल्व को भी बंद कर देते हैं। તમારે ઘરે નથી કરવાનું હો આ બંધ। आपको घर में नहीं करना, वो लैब में करते हैं हम सेफ्टी के साथ। वो पूरा ग्रिल के अंदर टेस्ट करते हैं ताकि अगर इनकेस अगर जो टेस्ट कर रहा हो उसको चोट ना लग जाए। मतलब ग्रिल समझ रहे हो आप? बॉक्स चैम्बर में हम करते हैं, चारों तरफ से लोहे से वो चैम्बर ढका होता है, लोहे के ग्रिल से। तो प्रेशर कुकर की ये सब चीजें जो अभी हमने आपको बताया या आपने हमें बताया, वो सब स्टैंडर्ड में लिखा है कि मटेरियल शुड बी यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर, इट शुड बी एल्यूमिनियम। उसके अंदर ये पैरामीटर्स होने चाहिए। उसकी जो रबर है, वो गास्केट है, वो रबर की होनी चाहिए, और वैसा रबर होनी चाहिए कि वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे भी वो पिघलनी नहीं चाहिए। तो उसका भी एक स्टैंडर्ड है उस रबर का, उसको भी एक क्वालिटी का होना चाहिए। जो हम एल्यूमिनियम ले रहे हैं
उसका भी स्टैंडर्ड है, वो हमें उसी स्टैंडर्ड का लेना है। हमें नहीं लेना, जो हमने बनाया है वो कंपनी को फॉलो करना है। वो चाहे हॉकिंग्स हो, चाहे वो प्रेस्टीज हो, चाहे वो कोई जगदीश किचनवेयर वाला क्यों ना हो, जो कि सावरकुंडला में उसकी फैक्ट्री हो, कोई भी हो। उसको अगर प्रेशर कुकर बनाना है तो ये सारे पैरामीटर्स को मीट आउट होना चाहिए, मतलब सारे पैरामीटर्स पे खरा उतरना चाहिए, टेस्ट में पास होना चाहिए। अब कैसे, अगर हम 10th क्लास में अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते तो फेल हो जाते कि नहीं, वैसे ही अगर प्रेशर कुकर एक टेस्ट में भी फेल हो गया तो वो फेल, फिर हम उसको लाइसेंस नहीं देते प्रेशर कुकर बनाने के लिए, क्योंकि प्रेशर कुकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डेली घर में यूज होने वाला प्रोडक्ट है। महिला या पुरुष, कभी कभी तो जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों के साथ जो है खाना बनाते समय बच्चे भी आ जाते हैं, रहते हैं वहां पे, तो महिला और बच्चों को भी चोट लग सकती है अगर प्रेशर कुकर खराब क्वालिटी का रहा। गैस सिलेंडर देखा, उस पे भी ISI मार्क होता है। तो हम क्या करते हैं, खाना तो स्टोव पे बनाते हैं, सिलेंडर बगल में रखते हैं कि नहीं? कितना खतरा है, अगर मान लो खराब क्वालिटी का सिलेंडर हुआ तो लीकेज हो जाएगी, और उसमें जो है बहुत मीथेन गैस होती है जो कि फ्लेमेबल होती है। क्या बोलते हैं फ्लेमेबल को, क्या बोलते हैं? ज्वलनशील होती है, वो आग लगाते ही ब्लास्ट, लेकिन वो नहीं होता ऐसा, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड ऐसा बनाया गया है कि उसमें कोई लीकेज ना हो। उसकी जो वेल्डिंग होती है ना, आप बीच में देखना कभी भी प्रेशर गैस का, वो बीच में वैसे कुछ ऐसा उठा सा रहेगा, देखा है सिलेंडर? नीचे उसका ऐसे राउंड सा पैर होता है, फिर 2 हिस्सों में होता है। प्रेशर कुकर 2 हिस्सों में बना के फिर उसको एक टेक्निक से जोड़ा जाता है। हम नॉर्मल ये आर्क वेल्डिंग नहीं करते उसमें। आर्क वेल्डिंग में कभी कभी हाई प्रेशर की वजह से ब्रेक भी हो सकता है, और उसके अंदर इतना हाई प्रेशर होता है, इतना हाई प्रेशर होता है कि कोई भी वेल्डिंग या किसी भी जॉइंट्स को वो तोड़ सकता है। तो इसलिए उसको एक अलग टेक्निक से उसकी वेल्डिंग की जाती है, ताकि कहीं से भी लीकेज ना हो। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? अगर कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछना, मैं 10 बार भी बताने के लिए तैयार हूं। अभी आप सब बताओ कि आप सब किसके बारे में जानना चाहते हो? कौन सा प्रोडक्ट है जिसके स्टैंडर्ड के बारे में जानना चाहते हैं? તમને જે સ્ટાન્ડર્ડ, જે પ્રોડક્ટ એટલે જે વસ્તુનું સ્ટાન્ડર્ડ જાણવું હોય, કોઈ પણ વસ્તુ, તો એ તમે કહો તો એના વિશે સાહેબ તમને માર્ગદર્શન આપશે. આંગળી ઊંચી કરીને કહેવાનું, અંદરો અંદર ડિસ્કસ નથી કરવાની. बिस्किट का जाने? बिस्किट खाने वाला वाटर बॉटल, चलिए वाटर बॉटल के बारे में जानते हैं। स्टैंडर्ड आप सब बनाओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है? और जिसको बताना होगा वो अपनी हाथ उठाएगा और वो वही बोलेगा। तो
तो पानी का स्टैंडर्ड बना रहे, तो पानी का जो बुक का नंबर है वो है 14543। सबसे आप कभी भी पानी की बोतल खरीदना, उसके ऊपर वो नंबर लिखा होगा। कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो उसके ऊपर उसका नंबर, बुक का नंबर लिखा होता है, और उस बुक में उसको क्वालिटी का कैसे बनाना है वो सारे प्रोसीजर, टेस्ट मेथड्स, वो सब लिखे होते हैं। तो हम अभी पानी का स्टैंडर्ड बना रहे हैं। तो सबसे पहले पानी के लिए हमें क्या चाहिए? शुद्ध पानी के लिए हाथ उठाएंगे। हाँ, फिल्टर। नहीं, सबसे पहले शुद्ध पानी के लिए हमें पानी चाहिए। हमें प्योर वाटर बनाना है, पीने के लिए बनाना है, तो हमें सबसे पहले पानी चाहिए। ठीक है, पानी कैसा होना चाहिए? अरे शुद्ध तो होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? आप क्या देखते हो पानी के अंदर? पानी ना, पानी का बोतल है, हाँ, ऐसे खाली बोतल भी चलेगा। पानी की बोतल ऑफिस मत लेते हैं हमारी। हाँ, पीने की। हाँ, नहीं पीने के लिए नहीं, वो बिस्लरी पैकेज આ પાર્થભાઈ એક પાણીની બોટલ રેપર હોય ને લગાવેલું એવી બોટલ લેતા હો। नहीं है, हाँ वो मंगवा देता हूँ। बाहर से। हाँ रहने दीजिए। एक रेपर मैं लेके आता हूँ। तो हम पानी की बोतल बना रहे हैं, स्टैंडर्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पानी में हम क्या देखते हैं? पानी में हम क्या देखते हैं? पानी, वेरी गुड। कहीं हवा तो नहीं है, पानी ही होनी चाहिए। दूसरा उसके अंदर कोई डस्ट, कोई मिट्टी के कण ना हो, यानी पानी साफ दिखना चाहिए। मैला पानी तो नहीं पीते हम। क्यों? उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम जब भी पानी खरीदते हैं तो क्या देखते हैं? सबसे पहले हाँ, पानी, वेरी गुड, पानी होना चाहिए, इसके अंदर हवा तो नहीं भरा होना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या देखते हैं कि पानी साफ होना चाहिए, साफ दिखना चाहिए, मैला नहीं है, यानी उसके अंदर कोई डस्ट के पार्टिकल्स नहीं है। उसके बाद हम पानी, ये बोतल के कैप को खोलते हैं, फिर पीते हैं। पीते टाइम हम क्या देखते हैं? हाँ, कोई बोला उधर से क्या? स्वाद, टेस्ट। उसके अलावा और क्या देखते हैं? ऑर्डर, स्मेल। अगर वो उसकी स्मेल गंदी होगी तो हम पीते हैं पानी। टेस्ट, टेस्ट कैसा होना चाहिए? खारा, मीठा। पानी का जो टेस्ट होता है वो टेस्टलेस होता है। मीठा लगे रहता है। पानी का टेस्ट, पानी का जो स्वाद होता है वो टेस्टलेस होता है, स्वादहीन होता है। तो हमें सबसे पहले पानी देखा, उसके बाद हमने ये देखा कि वो साफ सुथरा है कि नहीं। उसके बाद हमने उसको स्मेल करके देखा कि कहीं वो बदबूदार पानी तो नहीं। फिर हमने उसको टेस्ट करके देखा, चख के, स्वाद लेके, कि कहीं वो नमकीन या मीठा इस तरीके का पानी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा फिजिकल टेस्ट हो गया। क्या हो गया? ये हमने खुद अपने शरीर से ही टेस्ट कर लिया। इतने तो समझ में आ रहा है? ये हमने अपने शरीर से ही टेस्ट कर लिया कि पानी पीने वाला है कि नहीं। अब
साइंटिफिक में आते हैं। ये तो हमने फिजिकल अपने बॉडी से ही टेस्ट कर लिया। साइंटिफिक में आते हैं कि पानी और कैसे हम क्या क्या देखते हैं। साइंस वाले बच्चे तो जानते होंगे। और क्या हम देखते हैं पानी में, साइंटिफिक में जाएंगे। हाँ, बैठे बैठे बताओ, बैठे ही। हाँ, जिंक, वेरी गुड। और बोलो बेझिझक। मैं तुम्हारे एज में था तो कुछ भी बोल देता था, और लेकिन बहुत पिटाई भी होती थी बाद में। अब मैं देख के भी बोलता था कि बाद में पिटाई ना हो जाए। ठीक है, और बताइए, जिंक देखते हैं। और ઊભો થઈને જવાબ દે ને ભાઈ, ઊભો થઈને। हाथ उठा के, हाँ बैठे ही बैठे बताओ। हाँ, एक्सपायरी तो हम जब पैकेजिंग पे आएंगे तब देखेंगे। अभी तो हम पानी की क्वालिटी, पानी के साइंटिफिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। मैग्नीशियम। और क्या देखते? कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जितने टाइप के भी हमारे खनिज हैं, मिनरल, गुजराती खनिज बोलते हैं। जितने टाइप के मिनरल्स, खनिज हैं, वो हम देखते हैं कि इस पानी में कहीं एक्सेस मात्रा में या थोड़े से भी मात्रा में है तो नहीं। हमारे बॉडी में भी सब चीजें हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सब चीज हमारे बॉडी में। तो ऐसा ना हो कि हम किसी चीज को बाहर से जब कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में जाके एक्सेस हो जाए। आपको पता है हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है पहले से, उसका फंक्शन भी उसका वो काम करने का उसका अलग फंक्शन है। लेकिन हम जब ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ले लेते हैं तो फिर क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। हमारे बॉडी में सैक्रीन है, इंसुलिन है पहले से ही, लेकिन फिर भी डायबिटीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा एक्सेस मात्रा में सुक्रोज लेते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, चीनी, मिठाई, ये सब खाते हैं, तो हमें डायबिटीज हो जाता है। तो जब हम कोई भी चीज़ें जब ज़्यादा एक्सेस में हम कंज्यूम करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो इस पानी की बोतल में वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हमें टेस्ट करना है। इसके अलावा किसी बच्चे ने भी, जो मुझे सुनना है, किसी बच्चे ने भी नहीं बताया। पीएच का नाम सुना है? पीएच वैल्यू निकालते हैं, अल्कलाइन और बेस होते हैं तो पीएच का भी टेस्ट करेंगे कि कहीं वो अल्कलाइन वाटर तो नहीं है। पानी में ही तो पीएच की वैल्यू टेस्ट करते हैं। अरे हाँ या नहीं बोलो तो मुझे पता लगेगा, नहीं तो मैं पीएच के बारे में फिर बताने लगूंगा। तो हमें पीएच की भी टेस्ट करनी है कि कहीं ये अल्कलाइन नहीं है, कहीं ये बेस नहीं है। बेस होने से क्या होगा, हमारे स्टमक में, पेट में ऑलरेडी बेस है, जिसके वजह से हमारा क्या होता है, खाना डाइजेस्ट होता है। हमारे बॉडी में पहले से ही अल्कलाइन है, क्षार बोलते हैं ना, एसिडिक एसिड है, सब चीज़ है जो कि खाना डाइजेस्ट करने में हमें हेल्प करता है। अगर हम एक्सेस ले लेंगे फिर कभी कभी होता है ना, तो वो खट्टे ढकार आने लगते हैं, एसिडिटी होता है कि नहीं, एसिडिटी हो जाती है। वो इसी वजह से होती है, जब हम वो एक्सेस कंज्यूम कर लेते हैं, जब ज़्यादा हम कंज्यूम कर लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें पीएच का भी टेस्ट करना है। इसके अलावा हमें
पेस्टिसाइड का भी टेस्ट करना है। पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक दवा, जो हम खेतों में यूज करते हैं फसलों को बचाने के लिए कीड़े मकोड़ों से। तो हम क्या करते हैं, खेतों में दवा छिड़कते हैं, तो दवा कहाँ जाती है, पेड़ों पे जाती है, पौधों पे, उसके बाद जमीन पे भी जाती है। तो आप सोचोगे कि ये पेस्टिसाइड का टेस्ट क्यों करते हो, वो तो जमीन पे जाती है, तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ वो भी था बेन। कुछ आइडिया है? कुछ आइडिया है कि कैसे काम करते हैं? घबराવાનું જરૂર નથી, તમે બોલો હો। लाइट चली गई, कोई बात नहीं। आवाज सबको पहुंच रही है? कोई आइडिया है कि पेस्टिसाइड का टेस्ट क्यों करते हैं, कीटनाशक दवा का? આંગળી ઊંચી કરીને જવાબ દો ભાઈ। नहीं, ठीक है, मैं बता देता हूँ। जब हम कीटनाशक दवाओं का यूज करते हैं अपने फसलों पे, तो वो जमीन पे भी जाके गिरता है। फिर क्या होता है, रेनी सीजन, बारिश के मौसम में बारिश जब जमीन पे पड़ती है ना, तो वो वाटर लेवल में जाके मिलता है पानी। मिलता है कि नहीं? पानी कहाँ जाता है? जमीन के अंदर जाता है, और उसी जमीन के अंदर हमारे वो कीटनाशक दवा भी उसके साथ चले जाते हैं। तो हमें पेस्टिसाइड का भी टेस्ट करना है। तो पानी में हमने क्या देखा, पहले वो साफ सुथरा होना चाहिए, उसके अंदर कोई डस्ट के पार्टिकल, मड नहीं होना चाहिए, कीचड़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। उसके बाद उसकी जो खुशबू है या उसके अंदर कोई बदबू नहीं आना चाहिए। ये हमारे फिजिकल टेस्ट हो गए, साइंटिफिक टेस्ट हो गए, और सब बाकी जो आपने बताया, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पेस्टिसाइड, ऐसे 60 तरीके का टेस्ट इस पानी के बोतल के लिए होता है। 60 टाइप के टेस्ट होते हैं, और उस टेस्ट में पास होने के बाद ये आपको मार्केट में मिलता है पीने के लिए। समझ में आया क्या? क्या समझे? ગુજરાતીમાં જવાબ આપો। કેટલું આવડે છે? તમે જે સમજે આવડે છે બધાને જવાબ मैं नहीं पूछता हूँ। बोलो, बैठे बैठे बताइए। પાણીની અંદર 60 તરીકેના ટેસ્ટ થાય, પછી માર્કેટમાં પાણી આવે શું ટેસ્ટ થાય? તો અંદર કાંઈ બચતું નથી, સ્વાદમાં રેડી છે, અને તેની અંદર કાંઈ કીટકનાશક એવું કાંઈ નથી। तो ये पानी की जो बोतल है वो आपको मार्केट में ऐसे नहीं मिल जाती। और क्यों पानी ही क्यों? मतलब पानी तो इंडिया में फ्री है ना, हैंड पंप लगा लो, कहीं से भी निकाल लो पानी। फ्री है कि नहीं इंडिया में? आप घर में पानी खरीद के तो नहीं पीते। तो हम 10 रुपए की ये बोतल का पानी क्यों खरीद के पीते हैं? कभी बाहर जाते हैं तो कहीं पे भी पी सकते हैं। अगर हम पैसे दे रहे हैं कहीं पे, तो हमें उसकी वैल्यू की इतनी क्वालिटी मिलनी चाहिए। अगर हम 10 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो हमें उसके जो हमारा 10 रुपये है उसके अकॉर्डिंग हमें उतना सामान, उतनी क्वालिटी का मिलना चाहिए। वो कौन डिसाइड करता है? वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड डिसाइड करता है। समझ में आया? तो हम स्टैंडर्ड बनाते हैं, उसको कंपनी को बोलते हैं कि आप फॉलो करो और क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ। उसके अलावा ये तो हमारा सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन का वर्क है। इसके अलावा एक और वर्क है हॉल मार्किंग का। हॉल मार्क पता है? हॉल मार्क कहाँ देखा है आप लोगों ने? ક્યાં જોયો છે તમે હોલમાર્ક? ફટાફટ જવાબ આપો સાહેબને, સાહેબને પણ ખ્યાલ આવે ફટાફટ। हाँ, गैस ना बाटला में। गैस ना बाटला मतलब सिलेंडर में, गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर में देखा है तुमने हॉल मार्किंग?
હોલમાર્ક હોલમાર્ક આઈએસઆઈ નો માર્કો નથી કહેતા આઈએસઆઈ માર્કો નહીં હોલમાર્ક બોલો બેનો ફટાફટ सोने में, गोल्ड में, चांदी में। वेरी गुड। चांदी में देखा है? अब किसी ने कोई पक्का बोलने वाला है कि हमने कॉपर में भी देखा है। यूरेनियम में भी बोल देंगे या स्टील में भी बोल देंगे। चांदी में वैसे होता है, ठीक है, लेकिन चांदी में मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि चांदी में लगा के ही आपको दिया जाए। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन गोल्ड में हॉलमार्क लगना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। बिना हॉलमार्क के गोल्ड नहीं बेचा जा सकता ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी, वो चाहे पिथौडी हो या दिल्ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारा ये भी मेजर स्कीम है कि हम सोने की शुद्धता को भी परखते हैं। हम उसकी प्योरिटी डिसाइड करते हैं। और आप सभी को, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, आप सब कंज्यूमर हैं, मैं भी कंज्यूमर हूँ, मैं भी जाके दुकान से सामान खरीदता हूँ, आई एम ऑल्सो कंज्यूमर। तो मुझे ये इंश्योर होना है कि जो मैं पर पैसे खर्च कर रहा हूँ वो उतने क्वालिटी का मिल रहा है कि नहीं। पहले गाने सुन लेते हैं हम, ठीक है। अगर हम, चलिए अब 10 रुपए की पानी की बोतल की बात भी करते हैं। हम इसलिए नहीं ध्यान देते क्योंकि हम 10 रुपए की पानी की बोतल खरीद रहे हैं, बट अगर हमें 10 ग्राम गोल्ड लेना हो तो इसकी प्राइस कितनी होगी? 1 तोला 50,000 के करीब है, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। मान लो अगर हमने 10 ग्राम गोल्ड खरीदना है, क्या नाम है आपका? हाँ? रोशनी। रोशनी को 10 ग्राम गोल्ड खरीदना है और ये सोनी के पास गई और 10 ग्राम गोल्ड का पैसा दे दिया इन्होंने 50,000 रुपीज़ पेमेंट कर दिया और गोल्ड भी 10 ग्राम ले आए। बट बाद में इनको पता लगा कि ये गोल्ड तो 14 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, सॉरी 14 कैरेट का है या 16 कैरेट का है, और ये पैसा दे आई है 22 कैरेट का। तो इनको कितना लॉस हो गया? 50% का लॉस हो गया। तो मैं 25,000 रुपये का लॉस हो गया। तो ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। 10 रुपये की पानी की बोतल के लिए चलो कोई बात नहीं, हमने पी लिया तो ठीक है, गंदा पानी ही था। लेकिन अगर 50,000 में 25,000 का लॉस हो गया तो ये तो पागल हो जाएगी। तो हमें 5 रुपये का ही सामान क्यों ना हो, वो स्टैंडर्ड का होना चाहिए, क्वालिटी का होना चाहिए। हमें ये इंश्योर रखना है अपने आप में। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है कि नहीं? तो हम अगर एक एक रुपया भी अगर हम अच्छी जगह यूटिलाइज करेंगे, अच्छे प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो हमारा देश का विकास भी होगा। और जो ये खराब प्रोडक्ट बनाते हैं उनका सारा मटेरियल वेस्ट हो जाएगा, फिर उनका कंपनी भी बंद करना पड़ेगा। हम खरीदते हैं इसलिए उनकी दुकानें चलती हैं। और हमें ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आप वो चीज़ खरीदो, नहीं, आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना आपको। कई बार क्या होता है, रेलवे स्टेशन पे ना पानी की बोतलें ऐसे लोकल भी मिल जाती हैं। आदमी ध्यान नहीं देता क्योंकि ट्रेन छूट रही होती है। ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का है, पानी की बोतल लेने जाओ तो 20 लोग पहले से ही लाइन में खड़े हैं,
सामान लेने के, कोई गाठिया ले रहा है, कोई कापड़ा ले रहा है, किसी को पानी भी लेना है, किसी को कोल्ड ड्रिंक लेना है, तो हम ध्यान नहीं देते, ले लेते। लेकिन हमने तो 20 रुपये दे दिया ना, हमने तो उसको 20 रुपये दे दिया, बट हमारे को क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिला कि नहीं, या नहीं मिला? नहीं मिला। तो हमें ये इंश्योर होना है कि उसको क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए। हम जहाँ पे पैसे खर्च कर रहे हैं, किसको किसको उधर जाना है, तो उस तरफ नहीं देखो ना। मेरे को डिस्ट्रैक्शन होता है। आगे सर, लाइट, आपको लाइट का स्टैंडर्ड बनाना है। नहीं, हर चीज़ का स्टैंडर्ड है, पता है आपको। अगले साल 2023 में, जून 2023 के बाद आप जो भी पहनोगे पैर में, वो स्टैंडर्ड का होगा। जूते जो भी पहनो, जूते, चप्पल, स्नीकर्स, स्पोर्ट्स शूज, लेदर शूज, वो सब पे ISI कंपल्सरी होने वाला है। मतलब वो बिना ISI के आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। मतलब ये आपको इंश्योर हो जाना है कि वो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा। समझ में आया कुछ मैं जो बताने आया हूँ यहाँ पे? तो हम क्या करने वाले, एक स्टैंडर्ड लिखने वाले हैं। हर आदमी का स्टैंडर्ड अलग अलग हो सकता है। जैसे मुझे ये शूज़ पहनना पसंद है, बट सर को स्पोर्ट्स शूज़ पहनना अच्छा लगता है, उनका स्टैंडर्ड वो है। इनको चप्पल पहनना अच्छा लगता है। हर आदमी का अपना अपना स्टैंडर्ड हो सकता है। बट एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने एक स्टैंडर्ड बनाया है जो कि सभी के लिए लागू होता है। एक एग्जांपल ले फिर से। अगर स्त्री, पता है आयरन, स्त्री का जो शेप साइज है सबके घर में सेम है या किसी के घर में अलग भी है? अलग है। कैसे? वेट मत बताना कि उनके यहाँ भारी था, उनके यहाँ हल्का, ऐसा नहीं। साइज की बात कर रहा हूँ, उसके शेप साइज की। कैसा है सबके घर में? ऐसे ही है ना, ऐसे और ऐसे। हाँ, ऐसे शार्प, उसका टो जो है शार्प होता है कि नहीं? या किसी घर में ऐसा स्क्वायर जैसा भी है आयरन, या किसी घर में दिल जैसा है कहीं इंडिया में? क्यों है ऐसा? चलेगा, आवाज आ रही है सबको? चलेगा, रहने दीजिए, चलेगा ऐसे। तो स्त्री का स्टैंडर्ड ऐसे ही बनाया गया है कि जो भी कंपनी उसको प्रोडक्शन करेगी या मैन्युफैक्चरिंग करेगी, उसका शेप वैसे ही रखना है। क्यों रखना है स्त्री का शेप और उसका जो डायमेंशन ऐसा क्यों रखना है? क्या करता है स्त्री? अरे यार, सब लोग देखते हैं घर में, मम्मी यूज़ करती हैं, पापा तुम भी यूज़ करते होगे। क्या करते हो स्त्री से? हाँ, कपड़ा प्रेस करते हैं, कपड़े को इस्त्री करते हैं। कोई उस पर चाय तो नहीं गर्म करता? कर सकते हैं। हमने हॉस्टल में मैगी बनाया है इस्त्री पे। तो हमारा जो है बेसिक जो वर्किंग है इस्त्री का, वो है कपड़े प्रेस करना। और क्यों उसके ऐसे शार्प एज क्यों दिया गया? वो चाहते तो दिल आकार के भी बना सकते थे स्टैंडर्ड में। हम चाहते तो स्टैंडर्ड ऐसा लिखते कि आपको जो ऐसा मर्जी वैसा शेप रख लो, कोई फर्क नहीं, उसका काम तो कपड़े प्रेस करना ही होगा। तो हमने सभी
एक स्टैंडर्ड में ऐसे क्यों बताया कि इस तरीके का हमारा जो है शेप रखना है आपको? ઇસ્ત્રીનો શેપ એવો કેમ છે? ચાંચ આકારનો કેમ છે ઇસ્ત્રીનો શેપ? ચાંચ આકારનો. આ- આ ત્રિકોણ આકાર કેમ છે? થાવું બી બેન બધાને ખબર છે પણ બોલ. इन्होंने बताया कि कॉलर प्रेस करने के लिए, तो कॉलर नहीं, कॉलर तो अगर वो स्क्वायर में भी होगा फिर भी हम प्रेस कर लेंगे। બોલ ભાઈ બોલ. बोलो भाई। જ્યારે કપડા ઇસ્ત્રી કરતા હોય ત્યારે તે એની ઘડ વિખાતી જાય। हिंदी में बोलो आप। जब वो कपड़े प्रेस करता है तब आगे की घड़ अगर चौरस होगा तो वो आगे की घड़ के ऊपर से सर जाएगा जल, लेकिन त्रिकोण आकार के होने से वो आगे वो घड़ विखाती जाती। जो क्रीज होती है ना सर, क्रीज, उसकी क्रीज, उसका कहना है कि जो क्रीज होती है उस पे वो सरलता से उस पर तो आपका आंसर भी नहीं सही है। स्त्री का काम जो लड़कियों की तरफ से कोई बताएगा? हाँ बोलो। क्या बात है, क्लैप फॉर हर। बहुत बढ़िया जवाब, सरस जवाब उन्होंने दिया है, बहुत अच्छा। इनका कहना है कि हर एक पार्ट को, क्लॉथ के हर एक पार्ट को उसको आयरन करना चाहिए, छोटे से छोटे। अगर हमारा ये अगर यहाँ पे है तो इसको भी प्रेस करना चाहिए। अगर उसका शेप डायमेंशन अलग होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। उसका साइज इसलिए दिया गया कि इस्त्री का काम है हर जगह हर एक पार्ट को आयरन करना, हर प्रेस करना, तो वो हर एक कपड़े के हर एक जगह पे पहुंचे, आयरन होना चाहिए, प्रेस होना चाहिए। उसके मोटिव के वजह से उसका डिज़ाइन ऐसे बनाया गया। दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं, स्विच। स्विच देखा है सबने? स्विच વિચારીને જવાબ આપજો ફટાફટ હવે. प्लग या स्विच, इसमें हम चार्जर लगाते हैं अपना मोबाइल का। तो क्या किसी के घर में ऐसा तो नहीं कि दूसरे शेप का चार्जर हो, सॉरी स्विच हो? सब अगर रोशनी के घर में अगर जो प्लग है, इनका जो चार्जर है, क्या आपका नाम क्या है? हाँ? माही। क्या ये अगर अपना चार्जर लेके माही के घर जाएं तो चार्ज होगा? क्यों नहीं होगा? तुमने बोला। और खड़े हो जाओ। तुमने बोला तो बैठ जाओ। तो तुम बोल क्यों नहीं रहे कि मैंने नहीं बोला? क्या नाम है आपका? શું નામ છે? નરસી. हाँ? નરસિંહ नरसिंह। नरसिंह, आप मोबाइल यूज़ करते हैं? ठीक है। तो क्या मोबाइल अगर आपका डिस्चार्ज हो जाए, मान लो आपके घर लाइट नहीं आती है और रोशनी के घर लाइट है, इन्वर्टर लगा है, रोशनी के घर इन्वर्टर लगा है और आपको बहुत ज़रूरी एक इंडिया और पाकिस्तान का मैच आ रहा है, वो देखना है आपको। आप रोशनी के घर गए और रोशनी को बोला कि प्लीज़ मेरा मोबाइल चार्ज कर दो थोड़ा सा, ताकि मैं मैच देख पाऊँ। तो क्या आपका चार्जर इनके घर में लग जाएगा या नहीं? लग जाएगा? मैं वही पूछ रहा था। तो आपने नहीं क्यों बोला? मुझे एम समझा के रुक जाओ, उसकी बात सुनो पहले। उसकी बात ગુજરાતી બોલ પેલા, ગુજરાતી બોલ. कोई बात नहीं, हिंदी गुजराती दोनों बोलो। सर तुम्हें एम बोला कि जो चार्ज हाथ में लेकर जाता तो चार्जिंग हो जाता। कोई बात नहीं। मैं इसीलिए पता है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ
क्योंकि अगर किसी को भी कुछ डाउट हो ना तो वो बोलो। अब इन्होंने बोला तो मैंने इनको क्लियर कर दिया कि नहीं, ये अभी यही सोच के घर चले जाते हैं और इनके लाइफ में वो क्लियरिटी आती ही नहीं। ये हमेशा यही दिमाग में बना रखते कि इसके घर में ऐसा जो भी उन्होंने बताया। तो अब समझ में आया नर्सिंग कि कैसे जो है आप अपने घर अपना चार्जर जो है इनके घर में भी मोबाइल चार्ज कर सकते, चाहे कपड़ा प्रेस कर सकते, चाहे अपने घर का जो है फ्रिज उठा के दे दिया इनको तो इनके घर में सेट हो जाए, है कि नहीं? या हम कभी ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन के भी डब्बों में हमारा मोबाइल चार्ज हो जाए, लैपटॉप चार्ज हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका स्टैंडर्ड बनाया गया है, उसका भी स्टैंडर्ड बनाया गया कि हर एक कंपनी का चार्जर, और हमने चार्जर बनाने वाली कंपनी को भी एक स्टैंडर्ड दिया कि आपको उस चार्जर के पिन के बीच में इतना गैप रखना चाहिए ताकि हमारे जो कंपनीज हैं जो सॉकेट बना रही हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, उनके डायमेंशन को चेंज ना करना पड़े। सर अभी एक न्यूज आई थी कि कंपनी सी टाइप चार्जर को ही अलाउ करती है। कंपनी सी टाइप चार्जर, हाँ सी टाइप चार्जर ही सभी को यूज करना होगा अभी। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं। सी टाइप चार्जर का यूज इसलिए अभी प्रचलन में आया है क्योंकि उसकी जो कैपेबिलिटी है ना चार्जिंग का, उसके केबल की कैपेबिलिटी है वो बहुत हाई है, वो हाई पावर को भी जो है ट्रांसफर कर सकता है। यानी अगर हमारा एडाप्टर 120 वाट का है तो उसके अंदर से जो जाने वाला पावर है उसको वो रजिस्ट कर पाएगा। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब हम 120 वाट का चार्जर यूज करते हैं तो हमारा फोन जल्दी चार्ज हो जाता है, पता है कि नहीं? 15 मिनट में। वो कौन सा एक ऐड आता है वन प्लस का, वन प्लस फोन आता है ना वन प्लस का, वो 18 मिनट में चार्ज कर देंगे फुल चार्ज। तो वो कैसे होता है 18 मिनट में? उसके पावर की वजह से होता है। तो वो पावर एडाप्टर से मोबाइल तक आने के लिए मीडियम क्या है? वो केबल है। तो सी टाइप केबल का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है, वो ज्यादा पावर को ट्रांसफर कर सकता है, इसलिए आजकल कंपनीज यूज करती हैं। तो स्टैंडर्ड समझ में आया कि क्या किस लिए बनाया जाता है। A4 साइज पता है? A4 पेज साइज का पता है? A4 जेरॉक्स कागज। अगर मान लो हर कंपनी A4 साइज पेज बनाती है और सबका डायमेंशन अलग अलग होता है, किसी कंपनी का A4 साइज इतना छोटा होता है, किसी का इतना बड़ा होता है, किसी का इतना बड़ा होता है, किसी का इतना, तो क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या क्या नुकसान होता है? बताओ। हाँ बताओ। तो सबसे पहले तो प्रिंटिंग मशीन बनानी पड़ती है, हर कंपनी को उसी अलग अलग टाइप के प्रिंटिंग मशीन बनानी पड़ती। दूसरा क्या चेंजेस करने पड़ते? दूसरा कार्टेज भी बनाना पड़ता जिससे वो प्रिंट होता है। कार्टेज मतलब समझ में आ रहा है? कार्टेज मतलब इंक जिसमें भरा जाता है, जिससे वो प्रिंट होता है, स्याही जिसमें भरते हैं, उसका भी साइज हमें अलग अलग बनाना पड़ता। तो कितने सारे चेंजेस होते हैं। सारी कंपनीज को अपना अपना एक अलग अलग बनाना पड़ता। किसी का साइज पता चले कि रोशनी ने ऐसा स्टैंडर्ड बनाया, ऐसा अपना एक सोचा दिमाग में कि हमारा जो A4 साइज का पेज होगा वो ऐसे तिकोना होगा, ट्रायंगल में होगा, तो प्रिंटिंग मशीन भी ट्रायंगल में बनानी पड़ती, उसका कार्टेज भी ट्रायंगल में प्रिंट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बनाना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड इसलिए बनाया गया कि एक स्थिरता आ सके, मतलब एक स्टेबिलिटी आ सके इंडस्ट्रीज में,
लोगों में, ठीक है। तो अब मैं अभी सेशन खत्म करने वाला हूं, और अगर किसी को भी डाउट हो कुछ भी तो पूछ सकता है, क्योंकि मेरे जाने के बाद से मैं फिर नहीं बताने आऊँगा। कोई भी किसी टाइप की डाउट हो तो पूछ लो। फिर हम स्टैंडर्ड राइटिंग लिखेंगे एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक स्टैंडर्ड लिखेंगे। किस प्रोडक्ट के बारे में लिखना चाहोगे? अगरबत्ती, ठीक है। अगरबत्ती का स्टैंडर्ड लिखेंगे। सबको पता है पहला फॉरवर्ड होगा, उसके बाद स्कोप, फिर रेफरेंस, फिर संदर्भ, रेफरेंस हो गया। और मटेरियल, टाइप ऑफ अगरबत्तीज, जवाब आपको फटाफट। फिर अगरबत्ती, अनिवार्य पदार्थ, मटेरियल हो गया। बोलो। वैकल्पिक पदार्थ, ओके। ऑब्जेक्टिव, टाइप्स ऑफ अगरबत्ती, कई टाइप की आती है ना, एक स्टिक वाली आती है, एक धूप वाली आती है, और एक आती है जो ड्राई धूप होती है, सूखे हुए होते हैं वो, उसमें स्टिक नहीं होती, बम्बू नहीं होता, बट वो ड्राई होता है। देखा है वो पंचवटी की आती छोटी सी, उसमें छोटा सा होल भी होता है उसके डब्बे में, नहीं देखा? स्मेल, बदबूदार अगरबत्ती बना दोगे तो यूज करेगा कोई? स्मेल भी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए एसेंस, हमें जो स्मेल का